पुलवामा हमले के एक और मुलजिम को गिरफ्तार करने में एनआईए को कामयाबी हासिल हुई है। एनआईए ने मोहम्मद इकबाल राथर नामी मुलजिम को गिरफ्तार किया है। इकबाल राथर को पुलवामा हमले में एक कलीदी मुलजिम के तौर पर देखा जा रहा है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता बरस 14 फरवरी को पुलवामा हमला किया गया था। हमले में सीआरपीएफ के 40 एहलकार शहीद हुए थे। वज़ारत ख़ारजा हिंद ने चीन से मुतल्लिक़ एक बयान जारी किया है, जिसमें उम्मीद जताई गई है कि चीनी फ़रीक़ बाहमी मुआहदों और प्रोटोकॉल के मुताबिक ख़ुलूस के साथ सरहदी इलाकों में अमन व सुकून की जल्द बहाली को यकीनी बनाएगा। As you are aware, India and China have been having discussions through established diplomatic and military channels to address the situation along the LAC in India-China border areas. The senior commanders of two sides had met on 6th June, 22nd June and on 30th June. Diplomatic engagements are also continuing in parallel, and last week on 24th June, a meeting of the Working Mechanism for Consultation and Coordination on India-China Border Affairs, that is the WMCC, was also held. The senior commanders meeting held on 30th June at Chushul was the third senior military commander level engagement to discuss issues related to disengagement at the face-off sites along the LAC and de-escalation from the border areas. Both sides have emphasized the need for an expeditious, phased and stepwise de-escalation as a priority. This is in keeping with the agreement between External Affairs Minister and his Chinese counterpart during their conversation on 17 June that the overall situation would be handled in a responsible manner and that both sides would implement the disengagement understanding of 6 June sincerely. The discussions in the latest meeting of the senior commanders reflected the commitment of both sides to reduce the tensions along the LAC. The two sides will continue their meetings both at the military and diplomatic level, including under the framework of WMCC, in the future to resolve the issues to mutual satisfaction. We expect the Chinese side to sincerely follow up and ensure the expeditious restoration of peace and tranquility in the border areas as per bilateral agreements and protocols. We completely reject attempts by Pakistan to bring material changes in the Indian territory of Jammu and Kashmir and Ladakh. Such cosmetic exercises are intended to camouflage Pakistan's illegal occupation of Indian territories, and we call upon Pakistan to vacate all Indian territories under their illegal occupation. हिंदुस्तान के डिजिटल स्ट्राइक से चीन तिलमिलाया हुआ है। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भी एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि 59 ऐप्स पर पाबंदी लगाए जाने से चीनी कंपनियों को $6 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ सकता है। हिंदुस्तान के इस इकदाम की दुनिया भर में तारीफ हो रही है। देखिए रिपोर्ट। चीनी ऐप्स पर पाबंदी लगाकर हिंदुस्तान ने चीन पर चोट की है। इसके देरपा असरात चीनी कंपनियों पर मुरत्तब होंगे। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक टिकटॉक और हेलो जैसे ऐप्स की मदर कंपनी बाइट डांस को कम से कम $6 बिलियन का नुकसान हो सकता है। एक अंदाजे के मुताबिक बाइट डांस कंपनी ने पिछले कुछ वर्षों में हिंदुस्तानी बाजार में $1 बिलियन से ज्यादा की सरमायाकारी की थी। हिंदुस्तान के फैसले की अमेरिकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने भी सताइश की है। उन्होंने कहा कि क्लीन ऐप का फैसला हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी और कौमी सलामती को मजीद मजबूत बनाएगा। We welcome India's ban on certain mobile apps that can serve as an appendages of the CCP's surveillance state. India's clean app approach will boost India's sovereignty. It will also boost India's integrity and national security, as the Indian government itself has stated. चीनी ऐप्स पर पाबंदी आयद करने के फैसले को हुकूमत की आला सतही कमेटी ने दुरुस्त करार दिया है। इस कमेटी में वजारत खारजा, वजारत कानून, वजारत इत्तलात व नशरियात और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT की वजारत के नुमाइंदे शामिल हैं। हतमी फैसला लेने से कबल इन चीनी कंपनियों के नुमाइंदों को कमेटी के सामने अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। जानकार मानते हैं कि चीन को $6 बिलियन नहीं बल्कि $100 बिलियन का नुकसान होगा। नए हालात में हिंदुस्तानी कंपनियों के पास भी मौका है कि वो देसी ऐप बनाए।
पिछले कुछ दिनों में लगे चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशन बैन से चाइनीज कंपनीज को एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक डेंट पड़ेगा। पॉपुलेशन की दृष्टि से भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है, उसी मात्रा में हमारे यहाँ यूजर्स हैं। तो अगर ये सभी यूजर्स चले जाते हैं इन मोबाइल एप्लीकेशन से, तो स्वाभाविक से बात है इन एप्लीकेशंस का नेट रेवेन्यू पे एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा। इस चीज का फायदा स्वदेशी कंपनी आराम से उठा सकती है। BSNL और MTNL ने अपना 4G टेंडर मनसूख करने का ऐलान किया है। 4G के लिए अब नया टेंडर जारी किया जाएगा। अब मुमकिन है कि मरकजी हुकूमत चीन की कंपनी हुawei को भी अलविदा कह दे। ये कंपनी हिंदुस्तान में 5G खिदमत की मजबूत दावेदार है। पिछले साल हुawei को 5G ट्रायल में हिस्सा लेने की इजाजत दी गई थी। अमेरिका में हुawei के प्रोडक्ट्स पर मई 2021 तक के लिए पाबंदी लगाई गई है। इस सिलसिले में हाल ही में मरकजी वुज़रा अमित शाह, S जयशंकर और पीयूष गोयल की मीटिंग हुई थी। मुमकिन है कि हुawei के ताल्लुक से कोई मंसूबा साजी की गई हो। आपको बता दें कि मुल्क में 5G ट्रायल को फिलहाल 1 साल तक के लिए टाल दिया गया है। ग्लोबल हेराल्ड कहता है कि $6 बिलियन का लॉस होगा। हमारे हिसाब से पोटेंशियल मार्केट कैपिटलाइजेशन लॉस करीबन $100 बिलियन का होगा, और अगर इंडिया उनको बैन कर देता है तो उनकी वैल्यूएशन में काफी लॉस होगा। ये तो शुरुआत है, अभी चीन को पै दर पे कई झटके लगना बाकी है। हिंदुस्तान चीन को चोट पहुंचाने के लिए तमाम पहलुओं पर संजीदगी से गौर व खौस कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। कोरोना वायरस के बढ़ते असरात और फैलती वबा के पेश नज़र कौमी अक़लियती कमीशन ने बड़ा फैसला लिया है। कौमी अक़लियती कमीशन अब मामलों की सुनवाई ऑनलाइन करेगा। इसके तहत अक़लियती कमीशन ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। कौमी अक़लियती कमीशन में मुल्क भर से अक़लियती तबके के लोग अपने मसाइल के साथ पहुंचते हैं, जिसके तहत नोटिस जारी किया जाता है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से मामलों के निपटारे में मुश्किलात पेश आ रही है, इसीलिए अक़लियती कमीशन ने ऑनलाइन मसाइल के हल का फैसला लिया है। महामारी का जो समय आया था उसमें भी कमीशन अपना निरंतर काम जारी रखा। हमारे पास जो पिटीशंस और एप्लीकेशंस आती रही, हमारे ऑफिशियल और हम सब लोग बैठकर यहाँ पर काम करते रहे। लेकिन जैसे अब दौर बदल रहा है, ज़्यादातर ऑनलाइन सिस्टम ये काम हो रहा है, जैसे हमें पिटीशंस रिसीव कर रहे हैं ऑनलाइन, तो हमने एक फैसला किया है कि अभी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम ऐसा करेंगे कि जो हमारे 15 पॉइंट्स प्रोग्राम है, प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम है, उसके बारे में जानकारी लेना, समीक्षा करना, रिव्यू करना विद द ऑफिशियल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, वो करेंगे। और जो सुनवाई भी है वो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या जो कंसर्न ऑफिशियल सुनवाई है हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करने जा रहे हैं। उसको बहुत जल्द हमने 30 को ये फैसला लिया कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंस का जो सिस्टम है सारा वो लगाएंगे। यूपी मदरसा बोर्ड इम्तहानात की तारीख में पहली मरतबा टॉप 10 तलबा की फहरिस्त पर सवाल उठ रहे हैं। गैर मुस्लिम तालिबे इल्मों में उर्दू, अरबी, फारसी, दीनियात के बढ़ते रुझानात के अलावा इन मज़ामीन में गैर मुस्लिम तालिबे इल्मों के गैर मामूली मुजाहरे पर सवाल उठ रहे हैं। इस मामले पर मदरसा बोर्ड के साबिक़ रुकन मौलाना अतहर हुसैन कासमी से बातचीत की हमारे नुमाइंदे तंजीर अंसार ने। तारीख में ये पहली बार है कि 40 जो टॉप 10 बच्चे हैं अलग अलग दर्जात के, उनमें से 15 बच्चे गैर मुस्लिम हैं। ये मदरसा बोर्ड की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। एक तरफ खुशाइन बात ये लग रही है कि गैर मुस्लिम भी उर्दू, अरबी, फ़ारसी पढ़ने में सामने आ रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। एक पहलू तो ये है। दूसरा पहलू ये है जिस पर सवाल अब उठ रहा है कि क्या कहीं मदरसा बोर्ड के जो सेंटर्स हैं उनमें नकल तो नहीं हुई। इस वक्त हमारे साथ मदरसा बोर्ड के साबिक़ मेंबर अतहर काज़मी साहब हैं। अतहर साहब, किस तरह से ये दो पहलू हैं? देखिए, जहाँ तक नतायज को देखने के बाद बात सामने आ रही हैं, तो वाकई ये बात मैं आपसे कह भी रहा था इस बात को कि ये बहुत अच्छी बात है। जिस तरीक़े से मुस्लिम से संस्कृत पढ़ने पे आगे आगे चले जा रहे हैं, और ये बात अभी सामने आई भी थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हवाले से भी कि एक संस्कृत पढ़ाने वाला एक मुस्लिम कैसे हो सकता है। तो ज़ाहिर है ज़बान किसी की मीरास नहीं है। जिस तरीके से संस्कृत हिंदुओं की मीरास नहीं है, वैसे अरबी और फ़ारसी जो है मुसलमानों की मीरास नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि मुस्लिम थायोलॉजी के ऊपर कुछ हिंदू लड़के काम कर रहे हैं
बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो आप बयान फरमा रहे थे उसमें थोड़ी सी सलाह कर दूं मैं कि मेरठ की जो टॉप 10 की फहरिस्त आई है तो उसमें चूँकि सेकेंडरी के 10 टॉप 10 हुए और आपके सीनियर सेकेंडरी के 10 हुए, इस तरह कामिल के, इस तरह फाजिल के, तो इस तरह कोई 4 कैटेगरी के 40 स्टूडेंट्स में से 15 नाम जो हैं वो निकल के हिंदू के आ रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, मैं समझता हूँ मुबारकबाद देनी चाहिए मदरसा शिक्षा परिषद को और रजिस्ट्रार को। और लेकिन जो दूसरी तरफ बात होती है, कहीं ख़तरा ये बात भी हो सकता है, कहीं ऐसा दिमाग में आ रहा है। और जाहिर है कि ये और बात कि वो 15% है, समझिए, मैं समझता हूँ 85% में मैं पॉजिटिव चल रहा हूँ, 15% निगेटिव चल के रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो लड़के ना तो सिलेबस को जानते हों, ना किताबों का नाम जानते हों, ना अरबिक और पर्शियन के अल्फ़ाबेट्स को जानते हों, ना वो उस थेरेजी को समझते हों। अगर ऐसी कहीं बात सामने आती है तो फिर ये कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम के ऊपर एक दाग है। कानपुर में 31 जुलाई तक इबादत गाहें नहीं खोली जाएंगी। आज मजहबी रहनुमाओं और जिला इंतजामिया के दरमियान मीटिंग में फैसला लिया गया है। इसके साथ ही 6 जुलाई से सावन के महीने की शुरुआत भी हो रही है। इस मामले पर पुजारी और संत कल इंतजामिया के साथ मीटिंग करेंगे और इस मसले का हल निकालेंगे। नगर में विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों, धर्मगुरुओं, धर्माचार्यों के साथ में माननीय जिलाधिकारी महोदय और पुलिस महकमा पूरा बैठक किए हैं और पूर्व की जो भी व्यवस्था थी धार्मिक स्थानों पे उसी को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने का एक निर्णय लिया गया है। मठ मंदिर के धर्माचार्य, आचार्य, प्रबंधक, पुजारी और महंतों ने मिलकर के निर्णय लिया है कि 31 जुलाई तक आगे भी हम लोग जो विधिवत पूजा अर्चना गर्भगृह में मूर्ति की भगवान की होती थी वो विधिवत होती रहेगी, परंतु आम जनमानस के लिए मंदिर को 31 जुलाई तक के लिए बंद किया गया है और हम सभी लोग उसमें सहमत हुए हैं। आज की मीटिंग में जो पिछले महीनों में रहा है वही निर्णय लिया गया है कि 1 महीने के लिए इस ऑन डाउन का जो है आगे भी वही हाल रहेगा जो पिछले महीनों में रहा है और उसी तरीके से जो है सारी मस्जिदें बंद रहेंगी। जिस तरीके से मस्जिदें बंद थी उसी तरीके से बंद रहेंगी और कोई भी मस्जिद में जो है खोला नहीं जाएगा। देखिए, आज सभी धर्मों के जो प्रतिनिधि थे, धर्माचार्य थे, उनके साथ यहाँ सभागार में बैठक की गई जिला प्रशासन के साथ और सभी लोगों ने अपने अपने पंथ की ओर से, अपने अपने धर्म की ओर से अपना जो लोगों से बातचीत की थी उसके आधार पर ये बताया कि इस समय कोरोना का जब प्रकोप बढ़ा हुआ है तो धर्म स्थल खोलना सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तौर पर मेंटेन कराना संभव उनके लिए बहुत नहीं लग रहा था और सभी लोगों ने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य के दृष्टिगत धर्म स्थल न खोले जाना बेहतर होगा और सभी लोगों ने सर्वसहमत से यह निर्णय लिया है कि धर्मस्थलों के विषय में कानपुर शहर में जो व्यवस्था अभी चल रही है उसको 31 जुलाई तक यथावत चलाया जाएगा। नाजरीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जियो मीट लाया हिंदुस्तान की पहली HD वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप। ये ऐप सभी बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक साथ 100 लोग वीडियो कॉल कर सकते हैं। शेयर करें स्क्रीन, लॉकडाउन में रहे कनेक्टेड। आपको बता दें, जियो मीट लाया है हिंदुस्तान की पहली HD वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप। ये ऐप सभी बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक साथ 100 लोग वीडियो कॉल कर सकते हैं। तो शेयर करें स्क्रीन, लॉकडाउन में रहे कनेक्टेड। नाजरीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। कोलकाता के बेशतर प्राइवेट स्कूलों के फीस में इजाफे के खिलाफ आज कोलकाता में वालिदैन की जानिब से एहतजाज किया गया। एहतजाज कोलकाता के मुख्तलिफ इलाकों में आज फीस में इजाफे के खिलाफ किया गया। वालिदैन ने लॉकडाउन के दौरान बड़ी माशी पसमानदगी में स्कूल फीस में इजाफे को हैरान कुन बताते हुए हुकूमत से मुदाखलत की अपील की है। कोलकाता के पार्क सर्कस मैदान में वालिदैन ने जॉइंट फोरम के बैनर तले एहतजाज करते हुए वज़ीर आला से अपील की है कि वो स्कूलों के इंतजामिया के साथ इस ताल्लुक से मीटिंग करे और फीस के लिए सरकारी गाइडलाइन जारी की जाए। हमारा दाबी है नो स्कूल नो फीस। स्कूल नहीं हो रहा है, हमें कंप्यूटर चार्जेस देना है। स्कूल नहीं हो रहा है, हमें मेंटेनेंस चार्जेस देना है, हमें ट्यूशन चार्जेस देना है। आज के हालात में बच्चों को
ये जो ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे के साथ कौन रहेगा, आप ये बताएं। क्या ये मुमकिन है? क्लास 1 का बच्चा खुद अकेले हैंडल कर पाएगा? सरकार से हमारा डिमांड है, जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है स्कूल को कंसिडर करना होगा, फीस में रिडक्शन करना होगा। कर्नाटक के रायचूर में प्राइवेट स्कूल्स पेरेंट्स एसोसिएशन के सदर सोमनाथ रेड्डी ने अदालत के फैसले तक स्कूलों में ऑनलाइन तालीम न देने की मांग की है। सोमनाथ रेड्डी ने कहा कि ऑनलाइन क्लासेस की वजह से गरीब खानदानों के तलबा के सरपरस्त मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, जबकि देही इलाकों से ताल्लुक रखने वाले तलबा मोबाइल फ़ोन खरीदने और इंटरनेट का खर्चा बर्दाश्त करने से कासिर हैं। उन्होंने बताया कि बाज़ निजी स्कूल इंतजामिया की जानिब से ऑनलाइन क्लासेस के लिए टीचरों, तलबा और सरपरस्तों पर दबाव डाला जा रहा है। सोमनाथ रेड्डी ने ऑनलाइन क्लासेस का मुतबादिल तलाश करने की रियासती हुकूमत से मांग की है। 2019 कोविड 2019 का क्या चल रहा है ना, ऑनलाइन स्कूल का हमारा बहुत इसका अपोजिट है। क्या होता है, 27 सरकार एक रूल्स बनाया है, वो सरकार में बोलते हैं 27 को आर्डर कोर्ट को फाइल करे सो है, पेरेंट्स एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन 27 के आर्डर बना देते ये स्कूल ऑनलाइन स्कूल चालू करो बोल को। अभी इनको इन्फॉर्मेशन के लिए क्या अब गवर्नमेंट क्या करते बोल के सीखने के लिए बहुत है, उसका पहले ही 27 कुछ आर्डर कर देते। उसका पहले एक कमेटी करे सो 15th ऑफ ये मंथ में, उसको कमेटी में 11 लोग है, उसमें क्या क्या करने का है, क्या क्या नहीं है, शिक्षण से अलग क्या करने का है, बच्चों को 1 to 5 विदाउट ऑनलाइन बोल के वही सरकार गवर्नमेंट इस बोले सो है। अब क्या बोल रहे ऑनलाइन चलो बोल के, बच्चों का ये 100 मोबाइल से क्या इफेक्टिव होता है, वो रूरल एरिया में गवर्नमेंट स्कूल बच्चों में क्या है 100 मोबाइल रहता है। कोलकाता में प्राइवेट बस मालिकान ने किराए में इजाफे पर हुकूमत से आगे आने की अपील की है। इस सिलसिले में आइंदा कल बस काउंसिल एसोसिएशन ने बस मालिकान की मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में अहम फैसले का इम्कान है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला ममता बनर्जी ने प्राइवेट बस मालिकान को फौरी बस चलाने की हिदायत जारी किया था, वरना इनकी बसें जब्त कर ली जाएंगी। बस मालिकान ने बस को सरकारी तहवील में लिए जाने के बयान को अफसोसनाक बताते हुए कहा कि हुकूमत को बस मालिकान से हमदर्दी और हमारे मुतालबे पर गौर व फिक्र करने की जरूरत है। बस मालिकान और हुकूमत के दरमियान चल रहे तनाज़े से आम लोगों को परेशानी हो रही है। कोलकाता की सड़कों पर प्राइवेट बसें बिल्कुल नहीं देखी जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग इंतज़ार में खड़े हैं, लेकिन यहाँ प्राइवेट बसें बहुत कम चल रही हैं। जो भी बसें चल रही थी वो भी, उन बसों को भी धीरे धीरे उठाया जा रहा है। हालांकि वज़ीर आला ममता बनर्जी ने 24 घंटे का टाइम दिया है और कहा है कि अगर बस नहीं चलाई गई तो वो उन बसों को जो है वो सरकार अपने तहवील में ले लेगी। लोग परेशान हैं और परेशानी की वजह से बस स्टॉप पे लोगों की भीड़ नजर आ रही है, लेकिन बस किराए को लेकर जो तनाज़ा चल रहा है उस पर अब तक कोई हल नहीं निकल पाया है। हम कुछ लोगों से बात करेंगे। बस बहुत कम है, रास्ते में परेशानी हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है। क्या चाहते हैं? जल्द से जल्द बस बढ़ाना चाहिए गवर्नमेंट को। भाड़ा कुछ तो बढ़ना चाहिए क्योंकि तेल के दाम बहुत बड़ा है। हालांकि सरकारी बसें ज़्यादा चलाई जा रही है। कल से जो है वो और भी ज़्यादा तादाद में सरकारी बसों को उतारा गया है, लेकिन जिस तरह से लोगों को परेशानी हो रही है उसका कोई हल अब तक नहीं निकल पाया है। परेशानी बस की परेशानी हो रही है और आने जाने की परेशानी हो रही है, और कहीं पर ऑफिस में जा नहीं पाते हैं, घुस नहीं पाते हैं, ये परेशानी है। तो बस तो चल रही है यहाँ पे? बस चल रही है तो बहुत देरी से चल रही है। बस एक वाहिद जरिया है जिससे आम लोग आ जा सके, क्योंकि किराया जो है वो बहुत कम लगता है बस में। ऐसे में सरकारी बसें चलाई जा रही है, लेकिन इसके बावजूद लोग परेशान हैं और चाहते हैं कि प्राइवेट बसों को लेकर जो तनाज़ा है, जो मसला है, उस ताल्लुक से हुकूमत जल्द कोई फैसला करे। कैमरामैन शुभेंदु के साथ शबाना एजाज, न्यूज़ 18 उर्दू। राजस्थान के पैरा टीचरों के एक वफ़द ने वज़ीर आला अशोक गहलोत और वज़ीर अक़लियती उमूर सालेह मोहम्मद से मुलाकात की और उन्हें मेमोरेंडम सौंपा। ये मेमोरेंडम पैरा टीचरों के 8 मुतालबात पर मुश्तमिल है। हमारे जयपुर नुमाइंदे अरबाज ने पैरा टीचरों से बातचीत की, आइए देखते हैं। पिछले कई वर्षों से हम लोग अल्प मानदेय में ये जो इन मदरसा में कार्य कर रहे हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा नियमितीकरण हो और नियमितीकरण जल्दी से जल्दी हो। आज जो महामारी चल रही है इसमें भी हमने कोरोना वॉरियर्स के रूप में हमारे मदरसा पैरा टीचर ने युद्ध स्तर पर काम किया है। हर जिले में
कलेक्टर महोदय द्वारा हमारे मदरसा पैरा टीचर सम्मानित हुए हैं अच्छे कार्य के लिए। हम लोग चाहते हैं जिस तरह से हेल्थ डिपार्टमेंट या जिस तरह से दूसरे विभाग में जो नियमित किया गया है, हम लोग पिछले कई वर्षों से, कुछ तो 25 सालों से हम लोग कार्य करें अल्प मानदेय में सर, तो हम तो चाहते हैं कि नियमित किया जाए। हमें होती है वो 15% की वजह से हमेशा जो है एक वृद्धि होती है वो रुक जाती है, तो हम चाहते हैं कि ये 400 रुपये की हमें वृद्धि भी मिले। और जो इतने सालों से हमारे पैरा टीचर जो दूसरे जिले में लगे हुए हैं, हम चाह रहे हैं कि उनका भी जो है इस पे ध्यान दिया जाए, उनकी समस्या पर पूरी तरीके से ध्यान दिया जाए। डीजल पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफे का असर अब ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों पर पड़ रहा है। अलीगढ़ ताले और हार्डवेयर के कारोबार के लिए दुनिया भर में मशहूर है। ऐसे में यहाँ से तैयार शुदा माल बिकने के लिए मुल्क के कोने कोने में सप्लाई होती है। पहले मौजी बीमारी कोरोना के सबब लॉकडाउन और अब डीजल की कीमतों में इजाफे ने इस कारोबार की कमर तोड़ कर रख दी है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे से पहले के मुकाबले अब 25% काम रह गया है। वहीं माल की गाड़ियां चलाने वाले ड्राइवर भी इस सूरत हाल से खासा परेशान हैं। उनका कहना है कि जब हफ्ते में 1-2 दिन ही काम मिलेगा तो हम जिंदगी की गुजर बसर कैसे करेंगे। डीजल और पेट्रोल के जो रेट बढ़ रहे हैं, डीजल से बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। पूरी महंगाई की मार पूरी जनता पे फर्क पड़ रहा है। हमारे डीजल से जो गाड़ियां बेंगलोर जाती थी डीजल बढ़ने से पहले, उन गाड़ियों पे 20,000 रुपये का आने जाने का अंतर आ रहा है। इसलिए महंगाई चरम सीमा पे पहुंच गई है। गाड़ियां डीजल न मिलने की खातिर जगह जगह खड़ी हैं, माल न मिलने की खातिर, क्योंकि डीजल बढ़ गया तो माल उसी रेट में है, गाड़ी वाले माल भर नहीं रहे। जो भाड़े निकल नहीं रहे, 3-3 दिन खड़े हो जाते हैं गाड़ी में, एक आध चक्कर लगता है, वो खाने पीने में खर्च हो जाता है, ना मालिक को कुछ बच रहा ना कुछ। लॉकडाउन के चक्कर में वजह यही है, डीजल महंगा हो गया है, टोल महंगे हो गए। डीजल एक महीने में 10 रुपये प्रति लीटर डीजल बढ़ चुका। भाड़े के वही पुराने रेट हैं जो 3 साल पहले चल रहे थे, वही रेट आज मिल रहे हैं। इस वजह से गाड़ियों को घाटा जा रहा है, किस्त वगैरह, ड्राइवरों की तनख्वाह, मेंटेनेंस निकलने में परेशानियां हो रही हैं। औरंगाबाद में पुराने नोटों के बदले नए नोटों की तब्दीली के एक रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने इस मामले में 2 औरतों समेत 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि मुलजिमीन के कब्जे से 99 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। ये कार्रवाई औरंगाबाद की क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक होटल पर छापा मारकर अंजाम दी। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन ने 20 लाख रुपए के एवज 1 करोड़ रुपए की नोटें बदल कर देने का यकीन दिलाया था, जिसके बाद जाल बिछाकर मुलजिमीन को रंगे हाथों पकड़ा गया। 2 लेडी और मुश्ताक पठान और हाशिम खान, ये 2 बंदे थे और उनके साथ 2 लेडी थी। उन्होंने हमको पूछा कि आपने 20 लाख रुपए लाए क्या, तो हमारे APS सिंधिया और कुछ कर्मचारियों ने बैग जो रखा था उसमें बोले थे इसमें हमने लाया है। तो बोले तो आपके नोट कहाँ हैं, तो उन्होंने उनकी बैग रखे, तो बैग में हमने तहकीकात किए तो उसमें पुराने जो बंद हुए नोटा की जो बंडल्स थे वो हमें ताबे मिले और 4 को ताबे मिली और क्राइम ब्रांच के ऑफिस में लाए और पूरी छान करने के बाद वो 98 लाख 92 हज़ार रुपये ऐसी पूरी नोंद हुई उसकी गिनने के बाद, और वो बंद हुए नोट आई थे। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप रुख कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com का। आदाब। बड़ी बीमारी मतलब हॉस्पिटल,